Hello everyone, welcome to Digital Maths. Hello students of class 8. Today we are going to start with class 8 chapter number 12, exponents and powers. Yeah, this is the new chapter which we are going to start with, and today we are going to cover in this video exercise 12.1. Clear? So be ready. And what is exponents, what is power, each and every topic we are going to discuss. And wherever you feel, wherever you think that there is a doubt, you can comment in the comment section. अगर doubt नहीं है, कहीं पे भी आपको लगता है you have understood everything, then also mention that it is easy, quite easy to understand. It's hopefully best. We can understand everything. Digital maths is helpful. Whatever you want, but comment at least. Like करना ना भूले, comment जरूर करें and share with others. And if you have not subscribed this channel, then subscribe as well for more indication, for more details of like this, all the videos you will get it. So in this videos we are going to discuss about base with negative exponents, laws of exponents, base and exponent, exercise 12.1. This all we are going to discuss. See, we'll try to cover all the topics, all the sums of the exercise 12.1. If in this video we are not able to cover this all the sums, so we'll take it to the next video. Okay, so first of all, base and exponents. If we talk about base and exponents, what is base, what is exponent, what is base with negative exponents? So let us go with this detail. बेस एंड एक्सपोनेंट इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम लोग बेस और एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, लेट मी चेंज द फर्स्ट ऑफ ऑल कलर बिकॉज रेड के साथ मिक्स अप हो रहा है, सो विल टेक अनदर डिफरेंट कलर. सो सी, इफ वी टॉक अबाउट 4 एंड दिस इज 2, you have many a times said that स्क्वायर और स्क्वायर रूट में देखा होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में देखा होगा भाई, 2 क्यूब 2 स्क्वायर एंड ऑल. सो वेयर इफ वी आर राइटिंग 4 स्क्वायर, तो 4 दैट इज बेस एंड 2 दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट्स. बेस एंड एक्सपोनेंट्स को हम लोग पावर भी कहते हैं. यू माइट बी अवेयर, अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो 4 रेज टू पावर 2 या रेज टू 2, वी कैन से 4 रेज टू 2 or 4 raised to power 2. We can talk like this, we can say like this. So it should be clear in your mind that this 4 is the base and 2 is the exponent or the power. You have gone through 2 cube, 7 cube, 2 square, 6 square. This all are the square or the cube is the power or the exponent, and 2 or whatever the number whose cube or whose square we are taking, that is base. So it can be 4 is to 7 as well, 4 is to 8 as well, 4 is to 100 as well, 5 is to 1000 as well. This all are where 5 is the base and 1000 is the exponent. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4 is the base and 2 is the exponent, or we can say 2 is the power. Okay, now here 4 is the base and 2 is the exponent. It is read as 4 raised to power 2, 4 raised to power 2, 4 square, that is 4 into 4, that is 16. Example 6 raised to 5, तो 6 into 6 into 6 into 6 into 6, that is, अगर हम लोग को पावर निकालने को बोला जाए तो 6 raised to 5 अगर दिया है तो 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. If it is 7 raised to 3, तो we have to multiply 7 3 times. So this is how we talk about base and exponents. Is it clear? So this is how whatever. Now base with negative exponent, if it is सो नेगेटिव में पावर नेगेटिव होता है, जैसे 8 रेज टू -2, 8 रेज टू पावर -2, 8 बेस एंड -2 इज द एक्सपोनेंट. व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव पावर, ये याद रखना, समझना, क्वेश्चन गड़बड़ी ना हो जाए. इफ इट इज 8 रेज टू -2, आप इसको लिख सकते हो 1/8 रेज टू पावर 2. समझ में आ रहा है? अगर नेगेटिव साइन होती है तो 1/, जैसे अगर सपोज 1/8 रेज टू -2 नीचे होता, तो आप उसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो 8 रेज टू पावर 2 हो जाएगा. नेगेटिव साइन हो तो उसको ऊपर ले जाने से पॉजिटिव हो जाएगा, या ऊपर पॉजिटिव हो तो नीचे ले जाने से नेगेटिव हो जाएगा. ये चीज ध्यान से समझना. इफ इट इज 3 रेज टू -1, so we can write 1/3, and if it is 1/3 रेज टू -1, we will write 3, because 3/1 होता है लेकिन 3 हो जाएगा. Similarly, if it is 7 raised to -3, we will write 1/7 raised to 3. अगर 1/7 raised to -3 तो we will write 7 raised to 3. वाइस वर्सा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर माइनस पावर है तो उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव. अगर न्यूमरेटर में, सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होना चाहिए. अब वो ऊपर जो होता है दैट इज न्यूमरेटर, नीचे जो होता है डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर अगर माइनस पावर के साथ है तो उसको नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, +1.
अगर डिनोमिनेटर माइनस पावर के साथ है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस 1. So that you have to take. See here, 8 is the base and minus 2 is the exponent. It is read as 8 raised to power minus 2. 8 raised to minus 2 equals to 1 upon 8 raised to 2. And example, 6 raised to minus 5 equals to 1 upon 6 raised to 5. ये चीज याद रखनी है, गड़बड़ी ना हो जाए. Clear? Any doubt? Any confusion regarding this? कभी भी डाउट कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, हो तो क्लियर कर लेना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने होंगे कि एक्सपोनेंट्स के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो कैसे हमें आगे करना है, कैसे यूज करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. कैसे, चलिए चेक करते हैं. 8 रेस टू 0, a रेस टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1. देखो कोई भी नंबर हो, 1 रेस टू 0 होगा तो भी 1 होगा, 2 रेस टू 0 तो भी 1, 3 रेस टू 0 तो भी 1, 4 रेस टू 0 तो भी 1. यानी अगर कोई भी नंबर है जिसका पावर हमेशा 0 है, 6 रेस टू 0 तो 1, 10 लाख रेस टू 0 तो भी 1, कोई भी नंबर इन्फिनिटी रेस टू 0 तो भी 1. सो कोई भी XYZ नंबर हो, हमेशा उसका अगर पावर 0 है तो इट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1. आप बोलोगे क्यों भाई, पावर 0 होना मतलब 1 अपॉन 1 होना, क्योंकि इधर 1 है इधर 1 है और 1 अपॉन 1 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, तो दैट इज 1 इक्वल्स टू 0. तो ये हमेशा पावर हो जाएगा 1. ये चीज याद रखना है. अगर 3 रेस अपॉन 3 है तो हम लोग क्या करते हैं, 3 अपॉन 3 दैट इज 1, और 3 अपॉन 3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये अगर नीचे है तो उसको ले जाएंगे तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो 3 रेस टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 रेस टू 0. ये चीज रूल्स है, मैं बताता हूं आपको. देखो हाँ, ये भी याद रखना कि 3 रेस टू 3 है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो 3 रेस टू माइनस 3 हो जाएगा. 1 अपॉन 3 रेस टू 3 है, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन 3 रेस टू माइनस 3. ये भी वाइस वर्सा, प्लस के साथ जो होता है वही चीज माइनस के साथ भी होती है, जो माइनस के साथ जो होता है, तो उल्टा सीधा दोनों एक ही चीज है. तो a रेस टू m और a रेस टू n है, दोनों के बेस अगर सेम है, ये लॉज ऑफ पावर और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ये चीज याद रखना, अगर दोनों के बेस सेम है तो वी विल राइट a रेस टू m प्लस n. यानी सपोज 2 रेस टू 3 है इनटू 2 रेस टू 4, मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, इनटू की बात कर रहा हूं, प्लस डिवीजन एनीथिंग की नहीं, प्लस की बात कर रहा हूं नहीं, माइनस की बात कर रहा हूं नहीं, मल्टीप्लिकेशन ओनली. सो इट वुड बी 2 रेस टू 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू 7. 3 रेस टू 3 है इनटू 3 रेस टू 7 है, तो इट वुड बी 3 रेस टू 3 प्लस 7 दैट इज 3 रेस टू 10. एग्जांपल समझो. अगर डिवीजन में है भाई, पावर सेम है, a रेस टू m और नीचे भी a रेस टू n है, बेस अगर सेम है, डिवीजन में है, तो वो हो जाएगा a रेस टू m माइनस n. जो भी ऊपर वाला है उसमें से माइनस कर दो नीचे वाले का. जैसे 6 रेस टू 3 है और 6 रेस टू 2 है, तो ये हो जाएगा 6 रेस टू 3 माइनस 2 दैट इज 6 रेस टू 1. 7 रेस टू 7 है, 3 रेस टू 2 है, तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा. क्यों? दोनों का पावर, दोनों का बेस अलग है. दोनों का बेस सेम हो तो ही ये चीज एप्लीकेबल है, ये चीज खास ध्यान रखना. कैसे? वापस एक एग्जांपल ऑफ 5 रेस टू 3 एंड 5 रेस टू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5 रेस टू 3 माइनस 1. समझ में आ रहा है? 5 रेस टू 3 अपॉन 5 दिया हो, देखो किसी के पावर में या किसी के रेस टू में, किसी के एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है. ये चीज याद रखना, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान हमारे 1. मैथ्स के भगवान अगर बोले, मल्टीप्लिकेशन का जो बोलते हैं, दैट इज मैथ्स गॉड इज 1. मैथ्स के भगवान हमारे 1 है. अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग है, जैसे a रेस टू m b रेस टू m, तो हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b रेस टू m. जैसे कि सपोज 25 रेस टू 7 अपॉन 5 रेस टू 3, तो हम 5 रेस टू 7, तो हम लोग लिख सकते हैं 25 अपॉन 5 होल रेस टू 7. सो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, तो 5 रेस टू 7. ये चीज खास ध्यान रखना, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो टोटल कवर हो जाता है. ऑल्सो जैसे a रेस टू m और उन सब का टोटल का पावर n है, तो वो हो जाएगा a इंटू m इंटू n, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. जैसे कि सपोज 2 रेस टू 3 है और होल का स्क्वायर है, तो 2 रेस टू 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेस टू 6. 3 रेस टू 5 है और होल का 5 है, तो 3 5 इंटू 5 दैट इज 3 रेस टू 25. 7 रेस टू 1 है और होल का 2 है और उनका होल का 3 है, तो इट वुड बी 7 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 7 रेस टू 6. ये याद रखना है, पावर मल्टीप्लाई, अगर सेम चीज के पावर में पावर चलते रहता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट.
एक और बचता है, दैट इज अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, वो तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सो इट विल बी a into b raised to m, यानी 5 raised to 6 है और 7 raised to 6 है, तो इट वुड बी 5 into 6 raised to 6, सॉरी 5 into 7, so that is 35 raised to 6. ये चीज समझनी है, नहीं समझ में आता है, वन बाय वन हर एक फॉर्मूलास को देखो, क्या कहना, मैंने वैसे हर एक फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, बट दीस आर रूल्स, दीस आर लॉज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर ये समझ में नहीं आएगा तो यू कांट सॉल्व एक्सरसाइज 12.1. ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, उसको समझना है तो ये सॉल्यूशंस, ये लॉज आपको समझने होंगे. आई होप यू माइट हैव बीन क्लियर. कहीं पे भी डाउट है, एनी डाउट एनीवेयर, you can ask me out so that we can solve it out. just comment section में comment mention कर दीजिए, हम आपका solution लेके आएंगे. we'll surely solve your doubt. आपका जो भी डाउट है हम आपको सॉल्व करके देंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. वन बाय वन हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इवेल्युएट करना है कैसे क्या होगा, आंसर क्या होगा, दैट वी विल गो थ्रू. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. तो फर्स्ट आपका होगा, देखो मैं बता देता हूँ, 3 दैट इज 3 raised to -2 हम लोग लिखते हैं 3 raised to, क्योंकि a raised to -m अगर है तो हम लोग लिखते हैं a raised to m. आपको मैंने बताया था, सो 3 raised to 2 दैट इज 1/9, 1/3 raised to 2, और 3 raised to 2 means 1/3 into 3 that is equals to 1/3, 3 is 9, so 1/9 is the answer. Next 4 raised to -4 raised to -2, तो ये हो जाएगा, तो माइनस एक्सपोनेंट है तो 1/-4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/-4 into -4 दैट इज माइनस माइनस. देखो मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर दो माइनस साइन है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16, तो 1/16. एक चीज हमेशा याद रखना, जब पावर, जैसे यहाँ पे 4 -4 raised to 2, और पावर अगर इवन है, इफ द पावर इज इवन, देन माइनस साइन कभी भी नहीं रहेगी, वो हमेशा प्लस में हो जाएगा, तो 4 4 16. अगर ओड होता भाई, यहाँ पे 1/-4 raised to 3 होता, तो हमेशा माइनस साइन रहती, और 4 4 16, 16 4 16. ये चीज आपको समझनी होगी कि कैसे होता है, कैसे पावर में चलता है. सो दैट इज ऑल अबाउट, सो 1/16. नेक्स्ट 1/2 raised to -5. देखो 1/2 raised to -5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 1/1/2 raised to 5. तो ये क्या हो जाएगा 1/1. देखो ये जो है ना इंटरचेंज होगा, 1/5 इधर रह जाएगा और ऊपर में 2 raised to 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है. देखो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है. -1/1 -5 है तो -2 का -5 ले सकता हूँ, तो इट वुड बी 2 raised to 5. सिंपल. 1/2 होल raised to -5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 raised to -5, और y का भी -5. 1 के ऊपर -5 हो या कुछ भी 1 ही रहेगा, लेकिन 2 raised to -5 है, उसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 2 raised to 5 हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो प्लस, सो 2 raised to 5. सो आंसर इज ओवर हियर. ठीक है, सो 32 सॉल्व करेंगे. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 2 raised to 5 that is 132. Now question number 2. हर एक चीज को सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. अब वो पावर फॉर्म में रखना है, सिंप्लीफाई करके पावर फॉर्म में रखना है. तो -4 raised to 5 डिवाइड बाय -4 raised to 8. डिवीजन का मतलब होता है -4 raised to 5 अपॉन -4 raised to 8. ठीक है, अब आपको पता है डिवीजन जब भी होता है या कुछ भी होता है, विल पुट ओवर हियर, इसको आप या तो ऊपर ले जाओ या नीचे लेके जाओ, समझ में. लेकिन पॉजिटिव नोटेशन में रखना है, तो ये चीज याद रखना. देखो इट इज मेंशन्ड दैट पॉजिटिव नोटेशन में ही होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में होना चाहिए, तो जो बड़ा है उस तरफ लेके जाओ. आपको पता है a raised to m equals to 1/a raised to -m होता है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 5 पावर है उसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ही 8 - 5 यानी पॉजिटिव हो जाएगा. सो व्हाट वी विल डू, -4 raised to 5 को एज इट इज नीचे लेके जाएंगे. मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नीचे ले जाना है हमको. 1/-4 raised to -5 एंड -4 raised to 8. सो ये हो जाएगा. अब आपको मैंने एक और लॉ बताया था, चलो एक एक लॉ करके बताते हैं, सो यू विल गेट टू नो. एक तो ये हो गया माइनस, यानी 1/-4 raised to 8 और -4 raised to 5, -5 यानी. दूसरा होता है a raised to m एंड a raised to n अगर है, ठीक है, तो a raised to m plus n होता है, तो यहाँ पे भी सेम -4, तो 1/-4 raised to 8 -5. भाई एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है इसलिए -5.
सो इट विल बी 1 अपॉन -4^3। और पावर अब ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो माइनस साइन अगर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस साइन ऑड है तो माइनस ही रहेगा। सो बट वी हैव टू अरेंज इट इनटू द पावर, तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे। सो इक्वल्स टू 1 अपॉन -4^3, ठीक है। अगर ऑड होता है तो माइनस साइन लिखते हैं, इसलिए हम लोग -4/3। समझना, कहीं पे भी डाउट है तो पूछ सकते हो, बट अच्छे से कोशिश करना कि खुद करो, अच्छे से समझो। नेक्स्ट 1 अपॉन 2^3 होल रेस टू 2। अब इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर और 2^3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन 2^3 का स्क्वायर तो मैंने आपको बताया था a^m, और उसका रेस टू n हो तो a^m into n होता है। सो सिमिलरली 2^3 into 2, so that is equals to 1 upon 2^6. This would be the answer. So 1 upon 2^6 is the answer. समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? पहले ये जरूरी है, देखो कंसेप्ट क्लियर है अभी के अभी जस्ट कमेंट करो यस कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया। नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, वापस रिवर्स बैक करो, देखो एक बार, जब कंसेप्ट क्लियर होता है पुट इट डाउन, हाँ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, समझ में आ रहा है। ये चीज जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, समझना जरूरी है, याद रखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, -3^4 अपॉन इंटू 5 अपॉन 3^4। देखो पहली बात मैंने क्या बोला, माइनस साइन है और अगर एक्सपोनेंट आपका ऑड या इवन, देखो इवन है तो माइनस साइन चली जाएगी, ऑड है तो माइनस साइन रहेगी, तो ये इवन है, सो वी कैन राइट 3^4 इंटू 5^4 अपॉन 3^4, तो 3^4 कैंसिल, सो वी विल गेट 5^4। सो आंसर आपका डायरेक्टली आ गया 5^4। याद रखो ऑड नंबर ऑफ पावर, पावर अगर ऑड है, पावर अगर इवन है, तो माइनस साइन अगर है तो वो माइनस रहेगा, और इवन अगर है और माइनस साइन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर। ये चीज याद रखनी है, नहीं तो कोई दिक्कत पड़ेगी, गारंटीड दिक्कत पड़ेगी अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3^-7 डिवाइड बाय 3^-10 और इनटू 3^-5। देखो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बॉडमास रूल आपको नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो बॉडमास, ठीक है। ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ बोलते हैं ब्रैकेट, और बाहर हो जाता है ऑफ, यानी बीच बीच में कभी ऑफ लिखा होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। डी डिवीजन सबसे पहले, ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन वाला ऑफ नहीं, अगर ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले होता है, डिवीजन सॉरी डिवीजन फर्स्ट, मल्टीप्लीकेशन सेकंड, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ सब्ट्रैक्शन, ये रूल फॉलो करना। और अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सबसे पहले, तो देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं ब्रैकेट के लिए, सो 3^-7 अपॉन 3^-10 इंटू 3^-5, तो 3^-7 इंटू 3^+10, क्योंकि -10 है ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सेड कि अगर डिनोमिनेटर में a⁻m है तो वो न्यूमरेटर में जाके a⁻m हो जाएगा। तो ये चीज हमने फॉलो किया, ये लो हमने फॉलो किया, दिस आर एक्सपोनेंट्स लो। सो 3^-7 + 10, और ये -5 भी मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं लिख सकता हूँ -5, दिस विल बी आइदर। सो -7 -5 -2 सॉरी + 10, so that is equals to 3^-2, और 3^-2 को अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/3^2, that is 1/9। 1/9 तो करने की जरूरत नहीं है, बट वापस देख लो, -7 + 10, so 3^4 कहां से आ गया, 4 नो 3, हाँ it is 3, so 3^-2, that is 1/3^4, ये by mistake 4 हो गया, it is 3 भाई, 3 का 4 कैसे हो सकता है, जादू टोना तो आता नहीं, बट टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, सो टाइपिंग मिस्टेक इट इज 3, ये याद रखना, इट वुड बी 3, ठीक है। 3^-2 3^-2 +2 हो जाएगा, बिकॉज 3^2 अगर -2 है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो 3^+2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2^-3 इंटू -7^-3 अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई दोनों का पावर सेम है, तो 2 इंटू -7^-3, तो दैट इज -14^-3, सो अगर -3 है तो 1 अपॉन -14^+3 हो जाएगा। सो देखो लॉज आपको याद रखने हैं, ये चीज याद रखना, लॉज यू हैव टू रिमेंबर। आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, यू कैन मेंशन ओवर हियर, दैट इज a⁻³ इंटू b⁻³ या आप m लिखते हो तो m लिखो, दैट इज a⁻m इंटू b⁻m इक्वल्स टू a इंटू b होल रेज़ टू m।
तो वो चीज सारे लॉज मेंशन करते रहोगे तो आपको भी इजी रहेगा समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 raised to 0 plus 4 raised to -1 into 2 raised to 2। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 raised to 0 अगर आप देखो तो आपको पता है मैंने बोला था a raised to 0 1 होता है, सो 3 raised to 0 1 प्लस 4 raised to -1 है तो उसको मैं लिखूंगा 1/4, तो प्लस 1/4 इंटू 2 raised to 2 एज इट इज रहने देते हैं, या फिर आप चाहो तो 4 लिख सकते हो बट 2 raised to 2 लिखो, या फिर हम लोग इसको चेंज करके 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 raised to 2 दैट इज 2 into 2 equals to 4। नाउ इसका एलसीएम लेंगे तो 4 plus 1/4 into 4 एज इट इज, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं 1 plus 1/4 है तो 4/4 plus 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 4 plus 1/4। सो 5/4 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आंसर आएगा, 4 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वापस एक बार देख लो, 3 raised to 0 का 1, 4 raised to -1 का 1/4, सो 4 plus 1/4 into 4, सो 5 आंसर आपका आएगा 5। याद रखो एलसीएम लेना होता है और एलसीएम ध्यान से लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज 2 raised to -1 into 4 raised to -1 डिवीजन में है तो डिवीजन वाला 2 raised to -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज याद रखो, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे देख रहे हो, आप ध्यान से देखो, सो हियर इट इज 2 raised to -1 into 4 क्या होता है 4 equals to 2 raised to 2 होता है, सो मैं लिख सकता हूँ 2 raised to 2 into -1, 2 into 2 that is 4, so 2 raised to 2 upon 2 raised to -2। सो यहाँ पे देखोगे तो 2 raised to -1 into ये -1 अगर पावर में जाता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 raised to -2 upon 2 raised to -2, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, सो वी विल गेट 2 raised to -2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। थोड़ा फास्ट लग रहा है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि फास्ट है लेकिन आपका इजी वैल्यू है, वैल्यूज आर इजी। वापस देख लो एक बार, पहले स्लो मोशन में चलते हैं। 1/2 into 1/4 डिवाइड बाय 1/2 raised to 2, so 1/8 into 2 raised to 2 that is 1/8 into 4 that is 1/2। इस तरह से भी कर सकते हो, मैंने जो पहले किया वो भी कर सकते हो, 2 raised to -1 into 2 raised to -2 upon 2 raised to -2 होगा तो भी वही आंसर आ रहा था, और यहाँ पे भी वही आंसर आता है। यू कैन फॉलो एनीवन, आपको जो स्टेप ठीक लगे वो स्टेप फॉलो करो, इट वुड बी क्वाइट इजी। थर्ड वन देखो, 1/2 raised to -2 प्लस 1/3 raised to -2 प्लस 1/4 raised to -2, सो इसका मैं लिख सकता हूँ 1/2 raised to -2 प्लस 1/3 raised to -2 प्लस 1/4 raised to -2। अब डिनोमिनेटर में अगर -2 है तो वो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 raised to 2 प्लस 3 raised to 2 प्लस 4 raised to 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 सॉरी 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 दैट इज 29, सो आंसर आपका आएगा 29। चलिए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कमेंट करो, आई हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ में आता है डाउट है पूछो, या फिर एक बार रिवाइज करो, रिवर्स में जाओ, मोबाइल आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, जस्ट एक बार रिवर्स करो, स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली नोट डाउन कर दे। देखो पेन और बुक लेके ही बैठना चाहिए मैथ सॉल्व करते समय, ऐसे देखने से सीखने से या मैं बोल रहा हूं तो समझाने से नहीं आएगा। जस्ट टेक अ पेन एंड बुक, आफ्टर वॉचिंग वंस सॉल्व इट आउट। एक बार सॉल्व नहीं हो रहा है वापस देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो आप भी, फिर उसको वापस सॉल्व, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। सी 3 raised to -1, 4 raised to -1, 5 raised to -1, लेकिन रेस टू सबका 0 है। कोई भी कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, उसका रेस टू 0 है तो हमेशा 1 आता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है 3 raised to -1 प्लस 4 raised to -1 प्लस 5 raised to -1 और होल रेस टू 0 है, इसका आंसर 1 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ -2 upon 3 raised to -2 और उसका होल रेस टू 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो -2 upon 3 होल रेस टू -4, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसका देखो -4 है, माइनस साइन जब है तो वो पूरा पूरा इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, आप देखो तो, या फिर अलग अलग कर दो, -2 raised to -4 एंड 3 raised to -4, तो -2 जो है वो नीचे आ जाएगा और 3 वाला, तो 3 raised to 4 upon -2 raised to 4। अब पावर क्या है, इवन है, तो 3 raised to 4 upon 2 raised to 4, so 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 upon 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, so 81 upon 16 is the answer। देख लो यहाँ पे 81 upon 16,
2 रेस टू माइनस 2 का -2, 2 रेस टू माइनस 2 का -2 और 3 होल का पावर 2, तो 2 रेस -2 रेस टू -4, 3 रेस टू -4, -2 रेस टू 4, सो 81/16। इवन पावर हो माइनस साइन हो तो चली जाती है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट दिस वन, भाई इवेल्युएट करना है। 8 रेस टू -1 इंटू 5 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू -4। सो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 रेस टू 3 और उन सब का -1 पावर इंटू 5 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू -4। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 रेस टू -3 इंटू 5 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू -4। तो 2 रेस टू -3 इंटू 2 रेस टू 4, क्योंकि -4 है ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, इंटू 5 रेस टू 3। तो 2 रेस टू -3 प्लस 4 इंटू 5 रेस टू 3। So 2 into 5, 2 raised to 1 into 5 raised to 3, so 2 into 1, 25, 5 into 5, 25, 25 into 5, that is 125, so 2 into 125, that is 250, भाई 250 आंसर आएगा। ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? देखो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा फास्ट लगता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे, यू विल श्योरली गेट इट। आपको समझ में आ जाएगा सब चीज कि कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 रेस टू -1 इंटू 2 रेस टू -1 इंटू 6 रेस टू -1 दिया हुआ है। सो जस्ट 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 5 2 are 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 that is 60, तो 1/60 आंसर आएगा। देख लो यहाँ पे 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6 that is 1/60, इजी है इसलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हाँ ये ध्यान देखेंगे, 5 raised to m divided by 5 raised to -3 equals to 5 raised to 5, तो 5 raised to m अपॉन 5 raised to -3 हो जाएगा डिवीजन, और 5 raised to 5, तो 5 raised to m इंटू 5 raised to 3 लिख सकता हूं, क्योंकि ये डिवीजन में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 raised to 5, तो 5 raised to m plus 3, क्योंकि बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो वी कैन से दैट a raised to m plus n, तो 5 m plus 3 equals to 5 plus 5। सो दोनों का पावर सेम है, तो बेस अगर सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाते हैं। बेस अगर सेम है क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, तो m plus 3 equals to 5, तो m equals to 5 minus 3, तो m equals to 2। सो m की वैल्यू क्या आ गई 2, देखो यहाँ पे m plus 3 तो 5, m plus 3 equals to 5, तो 5 equals to 2, ये याद रखना है, m equals to 5 minus 3 that is equals to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे थोड़ा सा शांति से देखो, पहले बाहर वाला ब्रैकेट एज इट इज रहने देते, -1, अंदर वाला ब्रैकेट अगर ओपन करें तो 3 रेस टू -1 -1/4 रेस टू -1, ठीक है, 3 रेस टू -1 इंटू यहां तक होगा। नाउ -1 को हम लोग अगर ऊपर लेके जाएं तो इट वुड बी 3 -4 रेस टू -1 है तो +1 समझ लो -1, सो 3 -4 रेस टू -1 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेस टू -1, यानी हो जाएगा 1/-1, तो आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि -1 रेस टू -1 करोगे, इवन ऑड नंबर है हमारा 1, सो ऑड नंबर हो जाएगा, तो माइनस साइन एज इट इज रहेगी, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सो दैट वुड बी इक्वल्स, सो -1 आंसर आएगा। देखो वहां पे -1, सॉरी +1 नहीं, -1 आंसर आएगा भाई, -1, सो आंसर वुड बी -1, क्योंकि 1 का माइनस है ना, -1 का 1/-1 यानी -1 आंसर आएगा। यहाँ पे ध्यान देना -1 आंसर है, ठीक है, लिखा हुआ कुछ भी हो बट -1 इज द आंसर। नाउ 5 रेस टू -7/8 रेस टू -7 इंटू 8 रेस टू -4 अपॉन 5 रेस टू -4, ये आपका इतना बना, क्योंकि -7 था तो दोनों के ऊपर था तो दोनों के ऊपर कर दिया। नाउ -7 ऊपर जाएगा तो 8 रेस टू +7, -7 नीचे आएगा तो 5 रेस टू 7 इंटू 8 रेस टू -4 अपॉन 5 रेस टू -4, तो ये हो जाएगा 8 raised to 7 -4 upon 5 raised to 7 -4, that is 8 raised to 3 5 raised to 3, 8 raised to 3 means 512 upon 125, देखते हैं वापस, 512 upon 125 is the answer। क्लियर, समझ में आया? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो आप कोशिश करोगे तो आपका आंसर भी गलत नहीं होगा, कोशिश करते रहो, नहीं आता है तो पीछे जाओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, थोड़ा स्पीड में लग रहा होगा लेकिन आप फिर भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको इजीली लग जाएगा और मिल भी जाएगा आंसर, डोंट वरी। नेक्स्ट
Simplify this one by 25 into t raised to minus 4 upon 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. तो सबसे पहले 25 अगर दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ 5 raised to 2 into t raised to minus 4 है, मैं as it is इसको अभी as it is लिख रहा हूँ. 5 raised to minus 3 into 10 है तो 2 into 5 लिख सकता हूँ into t raised to minus 8. अब अगर हम लोग करें तो 5 raised to 2 into t raised to minus 4 into t raised to 8 और यहाँ पे 5 जो था t 5 raised to minus 3 और plus 1, so minus 3 plus 1 into 2, so ये हो जाएगा आपका 5 raised to 2 into t raised to 8 minus 4 upon 5 raised to minus 2 into 2, so that would be equals to, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 2 plus 2 t raised to 4 upon 2, तो 5 raised to 4 t raised to 4 upon 2, ये आपका फाइनल आंसर आता है. लेट्स सी 25 t raised to minus 4 5 minus 3 10x t raised to minus 8 5 square into t raised to minus 4 plus 8 upon 5 minus 2 into 2 into 5 5 raised to 2 plus 3 minus 1, देखो ये minus 3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 raised to तो माइनस हो जाएगा and t raised to 4, so 5 raised to 4 t raised to 4 upon 2, जो आंसर हमारा मिला सेम आंसर यहाँ पे भी मिल गया. So 625 t raised to 4 upon 2, 625 t raised to 4 upon 2 is the answer. चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 raised to minus 5 into, देखो 2 5 10 होता है तो 10 raised to minus 5 into 125 है तो 5 raised to 3 5 raised to minus 7 into 2 into 3 raised to minus 5. ठीक है, so 3 raised to minus 5 into 2 raised to minus 5 into 5 raised to minus 5 into 5 raised to 3 upon 5 raised to minus 7 into 2 raised to minus 5 into 3 raised to minus 5. So 3 raised to minus 5 3 raised to minus 5 cancel, 2 raised to minus 5 2 raised to minus 5 cancel, so बचा क्या 5 raised to minus 5 plus 3 plus 7, so 5 raised to 5. so जो भी आंसर मिलता है देखो वापस यहाँ पे समझना, सबको मैंने अलग अलग कर दिया. 10 यानी 2 5 10 होता है तो 2 raised to minus 5 5 raised to minus 5. 6 यानी 2 3 होता है तो 2 raised to minus 5 3 raised to minus 5. ये 5 ये 5 ये 5 cancel, so you'll get 5 raised to minus 5 plus 3 plus 7, so 5 raised to 5, that is 3125 3125 is the answer. So this was about the exercise base and exponents exercise 12.1. if you found any confusion any doubt you can ask me out. And thank you for watching. Share this videos, like करना ना भूले, comment जरूर करें, पसंद समझ में आया तो भी करें कि I have understood, it's all clear. नहीं समझ में आया then also mention what is the doubt, and subscribe करना बिल्कुल ना भूलें. So thank you very much. We'll meet soon with the next video with the next exercise 12.2. Bye bye.